Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel Shiv Academy Sonipat. So, in today's video lecture, I am going to prove one of the important theorem of MSc Mathematics, Lebesgue bounded convergence theorem. One of the great mathematician, Lebesgue proved this theorem, and he proved this theorem for a sequence of uniformly bounded and measurable function sequence. He proved this theorem for a sequence of uniformly bounded and measurable functions and defined on a set having finite measure. And the important result was that whenever this sequence fn converges to some function f, then the integral of that function f defined on E as well integral of fn or that set E both are equal. So this is basically the statement of the Lebesgue bounded convergence theorem. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रूव करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम एमएससी मैथमेटिक्स की रियल एनालिसिस की, लिबेग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम. तो ग्रेट मैथमेटिशियन लिबेग ने इस थ्योरम के अंदर क्या किया था, एक सीक्वेंस एफएन ली थी यूनिफॉर्मली बाउंडेड और मेजरेबल फंक्शंस की, और वो सीक्वेंस डिफाइंड थी एक सेट ई पे जिसका फाइनाइट मेजर है. तो रिजल्ट ये है कि अगर मान लो सीक्वेंस एफ एन एक्स एफ एक्स को कन्वर्स करती है, तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि जो इंटीग्रल ऑफ एफ और ई आएगा और इंटीग्रल ऑफ एफ एन और ई विद लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, दोनों इंटीग्रल्स के आएंगे इसके अंदर इक्वल आएंगे. सो दिस वाज द रिजल्ट विच लिबेग प्रूव्ड फॉर दिस बाउंडेड एंड कन्वर्जेंस सीक्वेंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. So if you look at the statement, let fn be a sequence. Just I told you that he took a sequence of uniformly bounded and measurable functions defined on a set E of finite measure. तो जैसा मैंने बताया कि fn एक सीक्वेंस होगी जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगी, मेजरेबल फंक्शंस की होगी और किसी सेट E पे जिसका फाइनाइट मेजर उस पे हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे. दैट मीन्स टू से द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस fn इज E such that fnx converges to fx, that means to say limit n approaching to infinity fnx equal to f of x for each x belonging to E. Then we have to show that integral f over equal to limit n approaching to infinity integral fn over E. So dear students, we have to prove this result. So in this statement we have used uniformly bounded. So here I have give a note about this uniformly bounded sequence. Sequence fn is uniformly bounded. It means that there exists some real number. Just we have taken here m such that mod fnx less than or equal to m for all n belonging to n set of naturals. This is set of naturals and x belonging to E. तो कोई भी सीक्वेंस जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगी तो वहां पे कोई ना कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा. जैसे इसके अंदर हमने m लिया है और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू m, मींस टू से माइनस m प्लस m के बीच में इस fn की वैल्यू क्या करेगी, लाई करेगी. तो इसका जो प्रूफ है बड़ा सिंपल है. इट्स प्रूफ इज वेरी सिंपल, वेरी इजी. जस्ट लाइक हियर इट इज गिवन दैट fn इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस defined on that set E of finite measure. So dear students, you have proved in the same real analysis course one of the important theorem, Egrow's theorem. One of the important theorem, Egrow's theorem. So we have to make use of this Egrow's theorem to prove this Lebesgue bounded convergence theorem. Dear students, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, मीन्स टू से Lebesgue bounded convergence theorem को प्रूव करने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम इग्रोव्स थ्योरम का यूज करेंगे. तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट fn बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ सेट E ऑफ फाइनाइट मेजर सच दैट fnx कन्वर्जेस टू fx almost everywhere. Then to each epsilon greater than 0 they corresponds a measurable subset E naught of E such that measure of E naught complement is less than epsilon. So we take this condition as well, and fnx converges to fx uniformly on E naught.
So basically what we are saying that in Grove's theorem, when we are having fn a sequence of measurable functions which we have given in this Lebesgue bounded convergence theorem also defined on a set E of finite measure, and one more thing, fnx is converging to fx almost everywhere, then we can make use of the result of this Grove's theorem that for each epsilon greater than 0 there corresponds a measurable subset E naught. तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए इस ग्रोव्स थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि fn हमारे पास सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की जो इस सेट E पे डिफाइंड है, तो हम क्या कहेंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन n एंड अ मेजरेबल सबसेट E नॉट contained in E such that measure of E naught complement is less than epsilon by 4m. This epsilon is arbitrary, so to prove our result we have taken here it as epsilon by 4m, capital M. And for n greater than equal to n and x belong to E naught, we have तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स मेजर ऑफ ई। तो डियर स्टूडेंट्स हम ये दोनों रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं कि मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट वो एप्सिलॉन से लेस होगा और एफ एन एक्स जो होगा वो इस एफ को क्या करेगा कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्मली ऑन ई नोट। तो ये तो हमारे पास आ गई मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m, और इधर से हमने यूज कर लिया है कि जो आपको ये कंडीशन दी है एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन ई नोट, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का रिजल्ट हमने यूज किया एफ एन एक्स mod fnx minus fx less than epsilon by 2 times measure of E. Now what we do, because we have to show that integral f over E equal to the limit n approaching to infinity, this integral fn over E, तो हम इसमें इस और इस वैल्यू का डिफरेंस लेके चलते हैं, बाद में उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो इन द लेफ्ट साइड वी हैव टेकन integral fn over E minus integral f over E. So it will become mod of integral fn minus f, and you know very well that this mod of integral f is less than equal to integral of mod of f. So we make use of this result. So what we get here, less than equal to integral over E mod fn minus f. बट जो E है वो E नोट यूनियन E नोट कॉम्प्लीमेंट है, तो एक रिजल्ट देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है इंटीग्रल f ओवर A यूनियन B इक्वल टू इंटीग्रल f ओवर A प्लस इंटीग्रल f ओवर B। तो हम यहाँ पे इस रिजल्ट का यूज करेंगे इंटीग्रल fn माइनस f, बिकॉज दिस E इज E नोट, आई एम राइटिंग है E इज व्हाट E नोट यूनियन E नोट कॉम्प्लीमेंट। So it will become integral mod fn minus f over E naught प्लस इंटीग्रल मोड एफ एन माइनस एफ ओवर ई नोट कॉम्प्लीमेंट। तो एक इंटीग्रल आपका ई नोट पे आ जाएगा, एक इंटीग्रल आपका ई नोट कॉम्प्लीमेंट पे आ जाएगा। और अब हम इन दोनों के लिए रिजल्ट यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट केस आप देखिए, फर्स्ट केस में इंटीग्रल है किस पे आपके पास ई नोट पे। तो अगर मैं स्लाइड बैक करूं, ई नोट के लिए हमने क्या कहा था, फॉर एक्स बिलोंग टू ई नोट वी हैव दिस मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स मेजर ऑफ ई। तो हमने इसका रिजल्ट यहाँ पे यूज कर दिया लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स मेजर ऑफ ई, और इनटू इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास मेजर ऑफ ई नोट इनटू मेजर ऑफ ई नोट। जैसे हम इंटीग्रल लेंगे तो ये मेजर ऑफ क्या बन जाएगा ई नोट बन जाएगा। ई नोट कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें, ई नोट कॉम्प्लीमेंट पे हमने कहा था मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m इनटू 2m। अब ये 2m कैसे आएगा, अब ये देखिए इंटीग्रल में है आपके पास मोड एफ एन माइनस एफ, तो मोड एफ एन माइनस एफ जो होगा मोड एफ एन माइनस एफ दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मोड एफ एन प्लस मोड एफ। और क्योंकि एफ एन की बाउंड m है और एफ एन एफ को कन्वर्स करता, तो इसकी बाउंड भी कैपिटल M रहेगी, इसकी बाउंड भी कैपिटल M रहेगी, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा m प्लस m, दैट मीन्स टू से इट विल बी 2m। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2m इस वजह से आएगी, और ये ई नोट कॉम्प्लीमेंट का मेजर आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 4m। क्योंकि मेजर थ्योरी के अंदर पढ़ा गया कि हम अभी जैसे सिंपल फंक्शंस के अंदर भी पढ़ा है कि जो इंटीग्रल मोड एफ एन माइनस एफ है और ई नोट है, तो ये मेजर ऑफ ई नोट बन जाएगा। इधर मोड एफ एन माइनस एफ है तो यहाँ पे मेजर ऑफ ई नोट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं
because this E naught contained in E, so we know that when A contained in B, then measure of A less than measure of B, so measure of E naught is less than measure of E. When we divide this by measure of E both sides, then we get it as less than 1. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मेजर ऑफ ई नोट अपॉन मेजर ऑफ ई आएगा दैट विल बी लेस देन 1, और इसलिए हमारे पास आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि इसमें m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, सो इट विल बिकम एप्सिलॉन. But because epsilon greater than 0 is arbitrary, that's why we get it as integral f over e equal to limit m approaching to infinity integral f1 over e. मीन्स टू से जब n बहुत ही लार्ज होगा तो ये एप्सिलॉन 0 का अप्रोच कर जाएगा, और इस वजह से हमारे पास जो होगा इंटीग्रल f over e आएगा, दैट विल बी लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल f1 over e. सो आई होप सो आप लोगों को ये रिजल्ट समझ में आया होगा. And if you are facing any problem or if you are having any doubt, then you can write down in the comment box. So thanks for watching the video. Don't forget to share the video, like the video and comment on the video. So again, thanks a lot all the viewers.